Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. Hi friends, at the start of the session, let me tell you about the offer for both Iconic and Plus subscriber. Yes, we are having the offer. It is valid till the 16th of July 2021 and exciting mega offers for CBSE classes from class 6 to class 12. So offers are like this. It is free CBSE subscription for 12, 15 and 18 months. Subscription के लिए हमको आपको 2 months free. Then 24, 36 and 48 months के लिए 4 months. And 16, 72 and 84 months के लिए 6 months free. वैसे the same things are applied and same conditions are applied for the Creative Corner subscription. That is 2 months, 4 months and 6 months for the respective months as given in the description here. So, and you are having the flat 10% discount on purchasing Plus subscription for all duration. So, this is बात की है. Please do subscribe for Plus and Iconic subscription. And just tell me about the CBSE latest guidelines are live on Unacademy. Yes, the new batches are going to start from the 19th of July 2021 for CBSE class 9th and 10th. Class 9th and 10th के लिए new batches start हो रहे हैं from 19th July 2021. And yes, the batches are dedicated to the term 1 and completely aligned with the new CBSE guidelines. जो कि अभी CBSE ने कुछ guidelines change किए हुए हैं उसके बारे में आपको completely guideline. And all subjects are going to be included. And yes, so the mode of conduction or mode of delivery will be both in Hindi and in English also. And yes, the term examination is going to approach in the 3 months. That's why these batches are dedicated to the term 1. So they किस बात की है? Just try to follow the subscription and try to have both the Iconic or Plus subscription as per your need. Then next I want to tell you about the Unacademy Compact. Yes, it is the mega compact and you can win the scholarship up to the 2 crore. Yes, there will be 30 questions. उसके आपको 30 questions होंगे and there will be total 45 minutes. And test will be in Hindi and English. And yes, you can have the free live test on the Android. So enroll now. The test, the mega compact will be on the 18th July for class 9th and 10th at 11 AM. So there किस बात की है students? You are going having 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code TD Live. So students, we are going to start with the today's topic, that is class 10th Information Technology code 402 under NISQF. So in today's lecture, we are going to study about the database management system, that is Introduction to Databases part 2. Okay, last lecture ने हम लोगों ने देखा था what is database, how database is going to work, what are the advantages of the databases, right? So in today's lectures, we are going to see how the tables, queries, forms and reports are going to be used in the database. उसके बाद after this lecture, we are going to see the actual practical sessions related to the database. But don't miss the basic lecture, that is Introduction to Database part 1 and part 2. Then only you are going to understand how practically we are going to perform the operations on databases. So let us start with the tables. So the first one is the tables. What is mean by the tables in database? Tables क्या होते हैं? ठीक है, आप लोगों ने एक्सेल्स में टेबल देखे होंगे. हाउ टू यूज द टेबल्स इन एक्सेल्स वो भी हम लोगों ने देख चुके हैं. Now what is the tables? Tables are nothing but it is a storage container storing data pertaining to a single object, subject on a purpose. एक कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेटा स्टोर करते हैं इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट. जिसकी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट्स देखी थी, वहां पर हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टेबल बनाया था, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स थे. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज स्टूडेंट्स रोल नंबर वाज देयर, देन द सब्जेक्ट्स were there like Hindi, English and science. Likewise
then we have calculated the average of the particular students all the marks, or average of the whole students marks, and so on. We have performed many more operations on the tables in the Microsoft Excel itself. So what are the, first of all let me tell you about the components of a table. टेबल के components क्या होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे. देखिए, a table is going to store the information for a group of things known as fields, and group of things means what? Fields are going to make together records. ठीक है. अभी देखिए, टेबल जो होता है वो क्या होता है? It is going to store information for a group of things known as fields which together make up records, right? So and data item is the smallest unit of the named data. ठीक है. अभी हम ये सारी जो टर्म है एक्चुअली स्टडी करेंगे ताकि आपको और अच्छे में इससे समझ में आए. अभी देखिए, रिकॉर्ड इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विच रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन. डेटा आइटम्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं. Then next one is we can see that lastly we can conclude that a table is a collection of all occurrences of a given type of logical records, and it is also called as a relation in a relational databases. As we have seen, there are flat and relational databases in last lecture, if you have seen the lecture. So now the next ones are the fields or attributes are the columns containing one type of information, and records are the rows representing one complete unit of information, and a logical record contains the contents of the all the fields. So we can lastly conclude that a table is a group of all the logically related records here. So before going to for the types of key in a table, firstly we will try to see what are the tables here. Okay, so I will just open Microsoft Excel. ठीक है. So I will select blank workbook. अभी देखिए, हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट रोल नंबर विल बी देयर, देन आई विल टेक स्टूडेंट्स नेम, देन ईमेल आईडी. ओके, दीज आर माय टेबल फिट्स. ठीक है. अभी मैं यहाँ तक उसको हाईलाइट करके लेती हूँ. आई मस्ट सिलेक्ट ऑल बॉर्डर्स. फॉन्ट थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर देते हैं. फॉर्मेटिंग तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं एक्सेल में, so that's not new thing for us. Student name, roll number and email ID. Okay, ठीक है. ये सब अभी हम लोगों ने डेटा सेट ले लिया है. अभी देखिए, ये मेरा जो है this whole is what? A table. Table contains roll number, name and email ID. ये सारे जो है क्या है? एक्चुअल पर्टिकुलर फील्ड्स है अपने टेबल की. अभी यहाँ पर देखिए, हम लोग अभी यहाँ पर क्या करने वाले हैं. सपोज आई एम गोइंग टू राइट द रोल नंबर एज 1 2 3 4. ठीक है. अभी यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग. सीमा कुछ तो अभी seema@gmail.com. सपोज हर ईमेल आईडी इज लाइक दैट. थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं. देन ram@gmail.com. then I will take as john@gmail.com. ठीक है. ये मैंने इमेजिनरी नेम्स एंड ईमेल आईडीज ले लिए. अभी देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेम और ईमेल आईडी जो है ये क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए. आपके टेबल्स के जो है वो ये पूरे के पूरे एट्रीब्यूट्स हो गए. अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी हुई थी, डेटा आइटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नेम्ड डेटा. सो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ? अभी देखिए, सीमा जो है ये एक डेटा आइटम है, राम जो है ये एक डेटा आइटम है, जॉन जो है ये एक सेपरेट डेटा आइटम. ये सारे एक एक करके मैं आपको डेटा आइटम्स जो है वो रीड करके दिखा रही हूँ. दैट इज नथिंग बट द डेटा आइटम्स. गीता जो है ये एक सेपरेट डेटा आइटम है, एंड वी आर हैविंग द कलेक्शन ऑफ दीज डेटा आइटम्स इनटू अ यूनिट. So it is called as what? A complete unit of information. A record is named collection of data items which represent a complete unit of information. So देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या? नेम जो है, अभी नेम कॉलम को मैंने पूरा सेलेक्ट किया. अभी रो एंड कॉलम्स यू हैव सीन इन द एक्सेल, बट आई कॉन्ट से इट अ कंप्लीट यूनिट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ जितने नेम्स है
whatever the names are there, we are going to select this. But a complete unit of information हम लोग किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर रोल नंबर 1 है, उसका नाम सीमा है एंड उसका ईमेल आईडी seema@gmail.com है. So this particular row is called as the record or a complete unit of information. ये complete row से हमको क्या पता चलता है? देखिए स्टूडेंट्स, रोल नंबर 1 का नाम, रोल नंबर 1 स्टूडेंट का नाम जो है वो सीमा है और उसका ईमेल आईडी जो है वो seema@gmail.com है. So as per the definition, a record is a named collection of data items which represents a complete unit of information. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग. और ये जो पूरा रिलेशन जो है हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? एक पर्टिकुलर टेबल. अभी देखिए ये नेम सेपरेटली, email ID separately and roll number. These are all nothing but what we can call it as the fields or attributes of our databases. देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो कॉलम्स है सिंपली हम लोग कह सकते हैं कॉलम्स आर नथिंग बट व्हाट? fields or attributes, and rows are nothing but what? Records. If you are trying to derive between the rows and columns, simply कॉलम को हम लोग क्या करेंगे? एक फील्ड या फिर एक एट्रीब्यूट कहेंगे और रोज को हम लोग रिकॉर्ड कहेंगे. सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? आवर रिकॉर्ड्स. सो आई विल सिंपली राइट लाइक दिस हियर. Records are here. So instead of writing here, I will write it here. This one is record. This one is complete record, and this one is complete record. This is also one record. And these are all what? Fields or attributes. I will write it as here. Fields or attributes. This is what? Field or attribute. This is what? Field or attribute. Okay, in this way we can derive fields and attributes as well as the records. देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? This is my record. Okay. So in this way we can derive between records as well as fields, or which we can call it as the attributes. देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्या देखा था? Records are the rows representing one complete unit of information. Okay, these are all terms related to our particular table. I hope you understood this point. Just once again I will repeat. देखिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी. ये जो है वो I should write here name like that. Student information. इसे मैं इसको नेम दे दूंगी. Okay, I will. ठीक है, अभी ये जो है मेरी टोटल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है. सो आई कैन से दैट आई एम गोइंग टू गिव माय टेबल नेम एज द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में मेरे फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर टोटली 3 फील्ड्स मैंने इंसर्ट की हुई है. कौन सी फील्ड्स है वो? रोल नंबर, नेम एंड ईमेल आईडी. सो फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स आर नथिंग बट द कॉलम which are going to represent a group or unit or group of the small data. अभी नेक्स्ट देखिए सीमा. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेलेक्टिंग ओनली सीमा. इट इज व्हाट? द स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट इन योर टेबल. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द रिकॉर्ड. अ रिकॉर्ड इज गोइंग टू रिप्रेजेंट अ होल यूनिट विच इज हैविंग सम मीनिंग एंड विच इज कंप्लीट. सो अभी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये रो सेलेक्ट करूंगी. एक यूनिट की टोटल इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल रही है. जैसे कि रोल नंबर 1 है, उसका नाम सीमा है और उसका ईमेल आईडी seema@gmail.com है. सो ऐसे हमको क्या मिल रहा है? रिकॉर्ड मिल रहा है. एंड दिस टोटल दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स एंड रिकॉर्ड आर नथिंग बट योर टेबल. सो अभी मेरे टेबल में कितने डेटा एलिमेंट्स है? टोटली 1 2 3 4. दैट इज I can conclude that in my table there are 4 records available right now. अभी मेरे टेबल में 4 records available हैं. ठीक है, so I hope you understood this thing.
That is how tables are going to be represented and how data is going to be shown in your tables. Okay. So the next point which we are going to discuss is types of key in a table. So let me tell you about, आपको अगर कोई डेटाबेस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है तो यहाँ पर की जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. If you are going to study the DBMS, without this key you will not able to understand what is mean by the DBMS, what is mean by the relational databases, and how to perform operations on relational databases also. So हम लोग one by one types of keys in a table देखेंगे. So first one is what? Primary key. देखिए प्राइमरी की जो क्या होती है वो क्या होता है? इट इज यूनिक की इन योर टेबल whose duplications are not allowed. I repeat, primary key is a unique key in your table whose duplications are not allowed. अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग देखते हैं, अभी हम स्विचिंग ही करेंगे so that you will have the better idea about it. देखिए सपोज आई विल इंसर्ट वन मोर रिकॉर्ड हियर, रोल नंबर 5 एंड रोल नंबर 5 का भी नेम जॉन, इसका ईमेल आईडी सपोज john1@gmail.com, ऐसा समथिंग लाइक दैट ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर लिखा. देखिए जॉन नाम के 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं. यस, जॉन एंड समथिंग जॉन, ठीक है, उनके सरनेम सपोज कंसिडर करेंगे हम डिफरेंट है फॉर्मेट. एक ही नाम के 2 पर्सन्स क्लास में हो सकते हैं, 3 पर्सन्स हो सकते हैं, मोर देन 3 पर्सन्स में भी देयर. ठीक है, सो जॉन नाम के यहाँ पर कितने पर्सन्स है, कितने स्टूडेंट्स है? 2 स्टूडेंट्स. अभी देखिए बट क्या हम लोग एक ही रोल नंबर दोनों जॉन को दे सकते हैं क्या? रोल नंबर 3 कैन बी गिवन टू जॉन which is at the roll number 5. It is not possible. That's why we can conclude that we can have roll number as primary key. That is what? Unique. मतलब उसका डुप्लीकेशन जो है वो अलाउड नहीं होगा. That's why roll number is generally considered as the primary key, या फिर the ID in your company is also considered as the primary key. Generally primary key जो होती है वो क्या होती है? in number format होती है, not in text format. Yes, text format में allowed है but it is not suitable to perform the operations. क्योंकि क्या होता है जनरली एक नाम के 2 इंसान होते ही है. That's why this may create conflict whenever you are going to perform some database operations. That's why we can conclude that here the unique key which is available in your records are what? The primary key. So the next type of key is composite primary key. देखिए अभी composite primary key मतलब क्या होती है? There are some situations where one unique key can't represent the information related to the particular record. That's why at that time we are going to use combinations of the 2 keys. That is nothing but composite primary key in your table relations. ठीक है, अभी पहले वो एग्जांपल से देख लेते हैं what is composite primary key so that you will be having the better idea about it. अभी यहाँ पर देखिए रोल नंबर है. अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, उप्स सॉरी मैं डिलीट कर दिया. I will insert it here. अभी यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टूडेंट को प्रोजेक्ट असाइन करें. अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उसको मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स जो है वो हम असाइन करते हैं. सपोर्ट प्रोजेक्ट का हम लोगों ने नंबर लिया, दैट इज प्रोजेक्ट नंबर and I will have insert project name. काम कर देते हैं इसको ना, थोड़ा सा फोन दूसरा दे देते हैं. And project name and here student's name, student whatever and student name. ठीक है, अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर देते वक्त हम लोग क्या कर देते हैं, अभी सीमा को मैंने क्या कर दिया, इको
फ्रेंडली व्हीकल, ये प्रोजेक्ट ऐड कर दिया और उसका सपोज प्रोजेक्ट नंबर है 5। ठीक है, विराम को मैंने क्या कर दिया, एक रिसाइक्लर का एक कुछ तो हमने प्रोजेक्ट दे दिया, उसका प्रोजेक्ट नंबर हो गया सपोज। देन जॉन को जो है मैंने क्या कर दिया, कुछ अलग प्रोजेक्ट नंबर और एक दे दिया, इको फ्रेंडली, सपोज अभी इको फ्रेंडली नहीं, अभी हम गार्डनिंग, इसको कुछ तो प्रोजेक्ट दे दिया, उसका सपोज प्रोजेक्ट नंबर होगा 4। अभी उसी को दैट इज फॉर द जॉन इटसेल्फ हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको एक और प्रोजेक्ट दे दिया है हमने, अभी इसका क्या है रोल नंबर, जॉन का क्या है रोल नंबर 3 है, राइट। सो इसको हमने क्या कौन सा प्रोजेक्ट दे दिया, सपोज नेचर फोटोशूट, ऐसे कुछ तो हम लोगों ने दे दिया। अभी गीता को हमने प्रोजेक्ट दे दिया कोलाज, और नेक्स्ट रोल नंबर 5 जॉन को हम लोगों ने क्या कर दिया, एक और कुछ तो प्रोजेक्ट दे दिया, जैसे कि यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। अभी यहाँ पर देखिए, अगर हम लोगों ने क्या कहा था, प्राइमरी की जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बट इन दिस केस यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉन जो है उसकी प्राइमरी की यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट जॉन को हम लोगों ने क्या किया है, दोनों प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं। सो when at that time it is not possible to have only one copy of primary key, then at that time what we are going to use, the composite key, which is combination of the two keys. That's why in some cases we have to use the composite primary key also. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय द प्राइमरी की एंड कंपोजिट प्राइमरी की। अब यहाँ पर कंपोजिट प्राइमरी की बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर एंड प्रोजेक्ट नंबर ये दोनों को मिलाकर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो वैल्यू जो है हमको उस टेबल में असाइन करनी पड़ेगी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेट की। So alternate key मतलब what? The alternate key is the key that have unique values for each record but is not selected for primary key. That's why we are going to call it as the alternate key. इसका मतलब क्या होगा, alternate key ही primary key की तरह unique होती है, but here it is not going to be assigned as primary key. देखिए हर टेबल में सिर्फ एक ही primary key होती है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, composite primary key भी दो कॉलम्स का यूज कर और दो फील्ड्स का यूज कर हम बना सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर आर सम केसेस और देयर आर सम चांसेस दैट देयर विल बी one column such like that there will be no any repetition of the data, and that can be used as the alternate key. That's why we are going to call it as the alternate key to the primary key. So here we can consider, देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर जो है वो क्या है, हम लोग कंसिडर करते हैं एक अल्टरनेट की तरह इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं हुआ है। हाँ, अगर यहाँ पर ऐसा होता, गीता और जॉन को हम लोगों ने क्या कर दिया होता, सपोज सेम प्रोजेक्ट दिया होता सोलर एनर्जी का, तो यहाँ पर क्या होता है, वो अल्टरनेट की यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल इट एज द अल्टरनेट की। हाँ, बट यस in this case we can call it as the project number is what, our alternate key. So this is about the alternate key. I hope you understood about the primary key, composite primary key, and next one is the alternate key. So यहाँ पर next one is what, the candidate keys. What are the candidate keys? Firstly देखिए, प्राइमरी की प्लस कैंडिडेट कीज मतलब क्या होता है, प्राइमरी की कैंडिडेट कीज कौन सी हो सकती है हमारी,
प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट कीज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर कर हम लोग क्या बना सकते हैं, कैंडिडेट की जो है वो बना सकते हैं। देखिए अभी फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया, कैंडिडेट की जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की और अल्टरनेट की का दोनों का मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट विल बी नथिंग बट योर कैंडिडेट की हियर। In short, what we can say, the keys which are eligible for the primary keys, whatever the keys available in your tables, which are ready to become a primary key are nothing but what, candidate keys. अभी देखिए यहाँ पर हम लोग कैंडिडेट कीज कौन कौन से कह सकते हैं इन करंट सिचुएशन, रोल नंबर, देखिए यहाँ पर रोल नंबर विल बी और कैंडिडेट की, ऑब्वियसली वो तो बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की हम लोगों ने असाइन की हुई है। देन प्रोजेक्ट नंबर विल बी आल्सो द कैंडिडेट की, एंड प्रोजेक्ट नेम भी जो है वो क्या हो सकता है, कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई रिपीटेशन नहीं है, ऑल द यूनिक्स वैल्यूज आर देयर, दैट्स व्हाई वी कैन से which are candidate keys in our table, roll number, project number and project name. So in this way we can use the candidate keys. So here primary keys are primary keys plus combination of all the alternate keys plus all the remaining candidate keys are the combination of the candidate keys here. एक बार फिर से मैं बताती हूँ, कैंडिडेट कीज जो होती है वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ दी ऑल प्राइमरी कीज एंड अल्टरनेट कीज होती है। देन नेक्स्ट वन इज दी फॉरेन की। अभी देखिए फॉरेन की इज अ की विच इज नॉट प्राइमरी इन दैट टेबल बट इज अ प्राइमरी की इन अदर टेबल, दैट इज नथिंग बट व्हाट, फॉरेन की। फॉरेन की एक ऐसी की होती है, वो क्या होती है, करंट टेबल में जो है वो प्राइमरी नहीं होती है बट किसी और टेबल में वो प्राइमरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक और टेबल इंसर्ट करके बताऊंगी सो दैट यू विल हैव द आइडिया अबाउट what is mean by the foreign key. ठीक है, अभी हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट नंबर नेम है, अभी यहाँ पर मैं एक और रो इंसर्ट, एक और कॉलम इंसर्ट कर देती हूँ। यहाँ पर अभी मैं देती हूँ टीचर आईडी। ठीक है, अभी कौन से टीचर एज अ गाइड उनको असाइन की हो गई, टीचर से बेटर है आई विल बी असाइनिंग इट एज ए गाइड आईडी। ओके, अभी यहाँ पर क्या होगा, ये स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, वैसे ही मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टीचर्स इन्फॉर्मेशन बोलकर एक टेबल और एक बना दूंगी, इसके सामने ही बना देती हूँ। अभी ये जो रहेगा मेरा रहेगा टीचर इन्फॉर्मेशन और गाइड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। अभी गाइड आईडी यहाँ पर रहेंगे G1 G2, ठीक है, ऐसे कुछ तो गाइड आईडी रहेंगे, एंड उन गाइड्स के जो होंगे वो सिंपली नेम यहाँ पर हम लोग रखते हैं, बाकी जो कॉलम्स हैं हमको अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए ईमेल आईडी भी हम नहीं रखेंगे उसका। गाइड नेम, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग गाइड के नाम से देते हैं ABC P2R XYZ को ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, ये गाइड आईडी है और ये गाइड आईडी हमारा क्या है, प्राइमरी की, राइट। मेरे कौन से टेबल में, गाइड इंफॉर्मेशन टेबल, ये मेरा प्राइमरी की हुआ। ओके,
अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, गाइड सबको अलोकेट करके देते हैं G2 G3, ठीक है। अभी मैं G1 G3 G5 G4, ठीक है। और भी गाइड जो है हम लोग असाइन कर सकते हैं G6 एंड सो ऑन। अभी देखिए यहाँ पर गाइड आईडी जो है वो यूनिक है, और यहाँ पर गाइड इंफॉर्मेशन टेबल में वो क्या हुआ, प्राइमरी की, दैट इज यूनिक की हुआ, बट दैट गाइड आईडी इज यूज्ड इन द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट प्राइमरी की. So that's why you can see here is the guide ID is foreign key in student information table. I repeat, guide ID is foreign key in student information table because it is primary key in the guide information table. देखिए ये सारे जो हमारे टेबल से रिलेटेड टर्म्स हैं, डिलीट कर देती हूँ so that you will not have any conflict when you are going to understand. Okay, I hope you understood what is mean by the foreign key here. Okay, so this is all about all the keys which are you are going to be used as per your need. आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से, आपके डेटाबेस के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं एंड डेटाबेस जो है वो बना सकते हैं. अभी देखिए यहाँ पर डेटाबेस क्या रहेगा, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और गाइड इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे. दैट विल बी व्हाट, योर डेटाबेस, and it is going to be stored wherever you want. So this is all about the types of a key in a table. That is primary key, which is unique, composite primary key, which is combination of two keys, then the alternate key, which can be used as the primary key, but it is not primary key as it is having unique values for each record. Then candidate key is going to become a combination of both the primary key and alternate key and all the candidate keys available in your table. The next one is the foreign key, a key which is not a primary in that table, but it is primary in the other table. This is nothing but what? Foreign key. Okay, this is all about the tables and its different fields, attributes, records, and data. Then the next part, which is we are going to see, is queries. So, what is mean by the queries here? A statement that gives you filtered data according to your conditions and specifications is nothing but a query. So यहाँ पर देखिए query क्या होती है, it is going to give you some data according to your conditions and specification. आपकी जरूरत के हिसाब से और आपके specification के हिसाब से query जो है वो क्या होती है, आपको data retrieve करके देती है. जैसे कि हम लोग अभी कह सकते हैं, if you know about the SQL. So SQL is nothing but all structured query language. We are going to study about it afterward. So that is totally purely based on the queries. जैसे कि अभी for example in today's example, देखिए अभी मुझे क्या करना है, I want to retrieve the data of all the Johns which are in the table. ठीक है, जितने भी जॉन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है मुझे क्या करनी है, ये टेबल से रिट्राइव करके लेनी है, मुझे फाइंड आउट करना है. सो अभी हम लोगों ने क्या देखा, देखिए 5 स्टूडेंट्स के लिए हमने डेटा देखा, उसमें भी वो इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए. सो इन अ क्लास देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, 20, 30, 60 एंड सो ऑन. सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा, बहुत ही रिकॉर्ड्स जो है हमको ट्रैवर्स करने पड़ेंगे. सो इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्सिंग ऑल द रिकॉर्ड्स, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज क्वेरीज एट दैट टाइम. I hope you understood what is meant by a query. Whenever you are going to write some queries in our actual databases, you will have the better idea about it. That is how to write the queries. It is very interesting part and very easy if you have understood what is meant by the tables and what is meant by the databases. Field क्या होता है, एक record क्या होता है, then attributes क्या होते हैं, then data unit क्या होता है, elements, data elements क्या होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आई होंगी तभी आप लोग क्वेरीज अच्छे से लिख सकते हैं. नॉट जस्ट ट्राई टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू द टेबल्स. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्स. यस, आपके मन में जो फॉर्म्स के बारे में आ रहा है, जैसे कि आप लोग एग्जाम फॉर्म भरते हो, किसी कॉलेज का स्कूल को एडमिशन फॉर्म भरते हो, ये सारे फॉर्म्स क्या होते हैं. दीज आर व्हाट, एन इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू, एंटर, चेंज डेटा डायरेक्टली इन द टेबल.
ठीक है, आप लोग कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो वो डेटा जो है आपका क्या होता है, एक टेबल में कन्वर्ट होकर एक डेटाबेस में स्टोर होता है, जितने भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म्स भरते हो। Even though if you are going to make the Gmail account, Facebook account, Twitter account, Instagram account, all of these nothing but whenever we are going to create a account, whenever you are going to create an account, वहां पर क्या होता है, एक फॉर्म होता है, वही हम लोग फिल करते हैं, जैसे कि योर फर्स्ट नेम, योर लास्ट नेम, योर डेट ऑफ बर्थ, योर इंटरेस्ट, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, ये सब क्या होता है डेटा हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म में भरते हैं, एंड दैट फॉर्म इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इनटू द table here. So that's why we can say that as the forms are are interfaces in a user defined or user specified layout that lets users view, enter and change data directly into the table here. So इससे क्या होता है, अपना डेटा जो होता है we can see it easily. ठीक है, अभी आपको आप लोग अभी डायरेक्टली अगर जाके देखोगे कि आप एक्चुअली फॉर्म्स कैसे स्टोर होते हैं ऑनलाइन, इट इज वेरी हेक्टिक टू सी दैट. That is, data is going to be stored into some centralized database, then it is distributed into the different networks and different servers, and their actual data is going to be stored. So to make user friendly forms, we are going to use the form designs. Okay, we will see after what is meant by the forms and how the form designs are going to be used into the database. So the next one is the reports. Okay, हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेशन देखे हुए हैं, हाउ इन बेसिक राइटिंग स्किल, हाउ टू राइट द रिपोर्ट्स देयर. So reports are what in an effective way to represent data in a printed format. So it is a formal, presentable, printed document that lists data in a formatted manner. अभी हम लोगों ने एक जो डेटा यहाँ पर एंटर किया हुआ है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टेबल है, इसमें कुछ सब डेटा ऐड किया गया है. बट अगर जनरल यूजर को हम लोग अभी ये डेटा जो है वो यूज करने के लिए देंगे, या फिर एक जनरल यूजर है उसको हम लोग जो डेटा है वो उसको समझ के लेने के लिए वो नहीं समझेगा. तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव सम रिपोर्ट्स, एंड यस ऑब्वियसली दिस रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, और वी कैन जनरेट द रिपोर्ट्स मैन्युअली आल्सो. सो वो रिपोर्ट्स हमको कैसे राइट करने हैं, उसका डेटा एक्चुअली कैसे अपडेट करना है, ये हम आने वाले सेशंस में जरूर देखेंगे. So the next and most important thing is how to design a database. That is, designing a database step by steps. So there are some rules or there are some steps which we can follow to design a database. Okay, so we will see them one by one. First of all, before actually designing the database, you must understand or you must determine the purpose of your database. आप डेटाबेस किस लिए डिजाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डेटाबेस. सपोज आई एम गोइंग टू राइट डेटा फॉर स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर्स डिटेल्स, और सपोज आई एम गोइंग टू राइट डेटाबेस फॉर एम्प्लॉय डिटेल्स, और आई एम गोइंग टू राइट डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर मॉल. मॉल में कितने सारे स्टोर्स है, कौन से स्टोर में कितना सारा मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा स्टॉक है, कौन से प्रोडक्ट्स है. ठीक है, दैट इज नथिंग बट डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर डेटाबेस. देन नेक्स्ट वन इज डिटरमाइन द टेबल्स यू नीड. ठीक है, स्टूडेंट के लिए हम लोग को सपोज कंसिडर करिए डेटाबेस बना रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से टेबल्स लगेंगे. एक तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लगेगी, उसके बाद उसके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन लगेगी, देन उसके बाद टीचर्स रिलेटेड टू दैट स्टूडेंट, उस स्टूडेंट को कौन कौन से टीचर्स जो है वो पढ़ाते हैं. ये सारे जो टेबल्स हैं वो हमको डिफाइन करने पड़ेंगे. देखिए, हम लोग डायरेक्टली जो है टेबल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज द डेटाबेस यू आर गोइंग टू यूज. So these steps must be followed in ascending order and in serial manner. Then next one is the determine the fields you need. ठीक है, अभी मैंने टेबल आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे स्टूडेंट डेटाबेस का जो है वो टेबल बनाना है. तो फर्स्टली मैं क्या कर रही हूँ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन बना रही हूँ. तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में मुझे कौन कौन सी फील्ड्स रखेंगी. फर्स्ट वन इज द रोल नंबर, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस, and so on things related to that student. That is nothing but determine the fields you need to design a student database. अभी देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें से प्राइमरी की जो है वो चूज करनी है. दैट इज आइडेंटिफाई द फील्ड्स और फील्ड विथ यूनिक वैल्यूज इन ईच रिकॉर्ड. यहाँ पर फील्ड और फील्ड्स क्यों यूज किए हुए हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके प्राइमरी की के लिए हम लोग अल्टरनेट की या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट की जो है या फिर कंपोजिट की जो है वो यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट आइडेंटिफाई द फील्ड और फील्ड्स विथ यूनिक वैल्यूज इन ईच रिकॉर्ड. देन नेक्स्ट वन इज
डिटरमाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेबल। अभी रिलेशनशिप देखिए यहाँ पर क्या कौन सी है, यहाँ पर गाइड आईडी एंड गाइड आईडी यहाँ पर भी। सो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन और गाइड इन्फॉर्मेशन में रिलेशनशिप से, सो यार वी हैव टू आइडेंटिफाई और डिटरमाइन द रिलेशनशिप्स बिटवीन द different tables in the same database or in the different databases. Then next one is refine your design. That is, try to understand the whole database which you have designed and then just you try to refine your design. मतलब क्या, आपके डिजाइन में कुछ अगर मिस्टेक्स हो, कुछ गलतियां हो, कुछ फ्लॉज हो, कुछ फॉल्ट्स हो, just try to rectify this and try to remove this. Then last one is enter data and create other database object. ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन एंटर डेटा एंड क्रिएट अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट। लास्टली हमको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद डेटा एंटर करना है एंड वी हैव टू क्रिएट द अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आल्सो। सो इन दिस वे वी कैन डिजाइन अ डेटाबेस। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सी दैट इज हाउ टू डिजाइन अ डेटाबेस, हाउ टू राइट data into the table, or how to modify, how to delete the data from the table in the upcoming lecture. So the book which I report for today's lecture is Information Technology by Sumita Arora. So that's all for today's lecture. So we will see the actual practical sessions related to databases in the next lecture. Till then, bye. So at the end of the session, let me tell you about the Mega Launch Mondays. It is one of the Unacademy subscriptions. So we are going to have the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. And the batch will start from the 5th of July 2021 and its duration is up till the 30th of November 2021. जहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे for CBSE class 10, that is target batch 2022. Yes, and it is going to cover the full NCERT syllabus with skill teachers. देखिए हमारी बैच जो है वो स्टार्ट होगी 5th of July 2021 से and it will end on 30th November 2021. So we are going to have subjects like SST, that is social sciences, आपका मैथ्स भी इसमें क्लियर हो जाएगा, साइंस, then English and Hindi also. So likewise we are having the target batch 2022 for class 9th also. So here also we are going to cover full NCERT syllabus. जिसे क्लास 10th में है वैसे ही आपका क्लास 9th में भी फुल NCERT सिलेबस जो है वो कवर होगा। सो यहाँ पर भी आपके पास रहेंगे SST, देन मैथ्स, देन साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी कोर्स। सो यू कैन सब्सक्राइब फॉर क्लास 9th and get 10th, 11th and 12th subscription free. Likewise, you can subscribe for class 10th and you can get the subscription for the class 11th and 12th for free. So हमारी अनअकैडमी की जो बैचेस है, these will be new batches every Monday. Every Monday आपकी new batches जो है वो start होंगी for class 9th also and for class 10th also. This will be called as the class target 2022 batch, जहाँ पर हमारा full NCERT syllabus जो है वो cover हो जाएगा. So these are nothing but our unacademy batches for class 9th and class 10th. So I will repeat again, that is if you are going to subscribe, आप लोग suppose 9th का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको क्या रहेगा, उसके साथ क्लास 10th, 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा. सो 9th के बच्चों के लिए बहुत ही एडवांटेज रहेगा. विथ 9th आप लोग क्या कर सकोगे, 10th, 11th एंड 12th का सब्सक्रिप्शन ले पाओगे. वैसे ही अगर आप लोग क्लास 10th का सब्सक्रिप्शन लोगे उसका भी आपको एडवांटेज रहेगा. आपको उसके साथ क्या करेगा, क्लास 11th एंड 12th का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी फ्री में मिल जाएगा. So just try to subscribe it and get the subscription free for class 10th and 11th and 12th. For 9th and for 10th, you can have the subscription of the 11th and 12th absolutely for free. So अभी मैं आपको अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक जो है उसके बारे में बताऊंगी. ओके, तो प्लस इज व्हाट योर बेसिक प्लान टू गेट स्टार्ट. एंड प्लस का जो एडवांस्ड है वो क्या है, आइकॉनिक. यस, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर. यस, करेक्ट. वी आर हैविंग द पर्सनल मेंटर्स फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. देखिए पहले हम लोग प्लस के बारे में बात करते हैं. प्लस में आपको मिलेंगे इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स, आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. उसके बाद आपके लिए हमेशा
live tests and quizzes लेंगी weekly, monthly. Then you are going to have the structure course and PDFs. Yes, the PDFs and course, that is notes, will be shared by the particular educator also. That will be the more benefit for you. Then next one is the iconic subscription. So जैसे कि मैंने अभी बताया, आइकॉनिक जो क्या क्या रहेगा, प्लस का एडवांस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या रहेगा, आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एज वेल एज द यूट्यूब आल्सो। यस, प्लस में भी आपको यूट्यूब के लिए अनअकैडमी के लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आइकॉनिक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस रहेंगे यूजिंग मेंटी क्विजेस, और वी आर हैविंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस आल्सो। एंड यस, ऑब्वियसली आइकॉनिक में भी आपको क्या मिलने वाला है, नोट्स एंड पर्टिकुलर पीडीएफ्स आल्सो, दैट इज टोटल स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी मिलेगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हियर। ठीक है, बस आइकॉनिक्स में और एडिशनल क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आपको पर्सनल मेंटर रहेगा। यस, दैट इज इंडिविजुअल मेंटर विल बी देयर टू अटेंड योर ऑल डाउट्स एंड टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स, दैट इज लाइव डाउट सॉल्यूशन भी आपके लिए रहेगा। यस, एंड यस ऑब्वियसली पेरेंट का जो है आपके डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रहेगा, दैट इज पेरेंट कनेक्शन विल बी देयर। And then next will be you will have your own personal study planner, that will be the benefit of the iconic selection. And अगर आप लोग रेफरल कोड यूज करते हो तो you by using my referral code, that is TDLI, you are going to have the 10% off on that. So देखिए अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे that is how to use the plus सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी समझो आप लोगों ने 9 का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके साथ 9, 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाता है फॉर दी प्लस। ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने 9, 10, 11 और 12 का आइकॉनिक का जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लिया तो उसके साथ आपको मिल जाता है होल बंच। देखिए अभी आप लोग अगर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको पड़ेगा 7,500, 7,500 में। अगर 6 मंथ का करोगे तो 10,000, 12 मंथ्स फॉर 15,000, देन 15 मंथ्स फॉर 18,000, और अगर 24 मंथ्स का लोगे तो वो रहेगा आपका 25,000 का। सो दिस विल बी ऑल दी सब्सक्रिप्शंस फॉर दी प्लस। ओके, सो लाइकवाइज प्लस वी आर हैविंग आइकॉनिक, दैट इज इट इज एडवांस्ड वर्जन ऑफ दी प्लस सब्सक्रिप्शन। देखिए अभी आइकॉनिक में आपको क्या रहेगा, इफ यू आर गोइंग टू फॉर द 3 मंथ्स सब्सक्रिप्शन आपको पे करने पड़ेंगे 12,000। अब इफ यू आर गोइंग फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेंगे 17,000। Likewise, if you go for 12 months, you will have the 28,000. देखिए आप लोग जितना ज्यादा यूज करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा मंथ्स का आप लोग सब्सक्रिप्शन लगे उतना ही क्या रहेगा, आपको डिस्काउंट भी अच्छे से मिलेगा। सो यहाँ पर आप लोग अगर 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन करोगे तो आपको रहेंगे 48,000. So likewise, you are going to have the subscription for the 9, 10th, 11th, 12th plus and 9, 10th, 11th, 12th icon. So उसके बाद अगर आप लोग क्लास 10 के लिए जाओगे तो क्लास 10 के लिए 11th एंड 12th का भी सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सो अगर हम लोग प्लस के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू पे 7,500, देन उसके बाद फॉर 6 मंथ यू हैव टू पे 10K, दैट इज 10,000, फॉर 12 मंथ्स यू कैन पे फॉर द 15,000। सो वैसे ही आप लोगों को क्या क्या रहेगा, 15 मंथ्स का 18,000 के लिए, 18 मंथ्स का आपके लिए रहेगा 20,000, 24 मंथ्स का रहेगा 25,000 के लिए एंड 36 मंथ का 32,000 के लिए। सो अगर आप लोग 10th में हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आप लोग 11 का और 10th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ ले सकते हैं। सो वैसे ही अगर आप लोग आइकॉनिक के लिए जाओगे, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक, देखिए यहाँ पर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है वो रहेगा 12,000 के लिए, देन 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 17,000 के लिए, देन नेक्स्ट वन इज 12 मंथ्स फॉर 28,000, then 15 months for 32,000, then 18 months for 35,000, then 24 months for 48,000, and lastly 36 months for 66,000. So I would suggest if you are going for the 9th, then you can have the benefit of both 9, 10th, 11th and 12th. अगर आप लोग 10th में जाओगे, 10 का सब्सक्रिप्शन आप लोग जोगे जो 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 11th and 12th का सब्सक्रिप्शन भी उसके साथ मिल जाएगा। So and you can use my referral code also with the flat 10% off discount. So now Unacademy is going to have the scholarship worth of rupees 1 crore plus in month of the July. Yes, we are going to have the Unacademy contract.
यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते, वी आर गोइंग टू हैव वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। सो स्पेसिफिकली फॉर 9th एंड 10th के जो बच्चे हैं वो लोग ये स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सो ये जो एग्जाम रहेगी दैट इज दिस कम्बैक्ट विल बी अवेलेबल और इट विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इन बोथ लैंग्वेज इट विल बी अवेलेबल on the date of the 4th July at 11 AM. So you can enroll now in the link which is given in the description box. So अभी अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट में आप लोग क्या 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 जीत सकते हो। ओके, इट इज योर फॉर्मूला फॉर सक्सेस। फर्स्टली आपका स्टडी अच्छे से हो जाएगा। इफ यू आर गोइंग फॉर द स्कॉलरशिप टेस्ट देन इट विल बी हैव मोर एनकरेजमेंट फॉर यू टू स्टडी मोर एंड इट विल बी फन लर्निंग। सो यहाँ पर इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। यस, बिल्कुल सही। एंड द एग्जाम टाइम विल बी 45 मिनट्स। आपके जो एग्जाम टाइम रहेगा वो रहेगा 45 मिनट्स का। इट विल बी हैविंग द 30 क्वेश्चंस। देखिए 30 क्वेश्चंस रहेंगे 45 मिनट्स के लिए। ओके, एंड यू कैन हैव दिस लाइव टेस्ट फ्री। ओके, इसके लिए कोई आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है। यू कैन हैव दिस फ्री लाइव टेस्ट ऑन योर simple Android phone. If you are having a laptop, you can use the laptop also. And yes, obviously tests are going to have in Hindi and English as per your convenience. So just remember this test will be there for only for CBSE class 9 and just try to note down the date. That is what 4th July at 11. Okay, I hope you understood what is this Unacademy Combat Scholarship Test. So you can have the 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription if you are going to use my referral code, that is TD Live. Okay, so and yes, obviously you can download the Unacademy app that is totally for free and you can use its all features for free. And you please use my referral code, that is TD Love, if you are going to download the particular Unacademy education app. So students, that's all for today. We will meet in the next lecture, Unacademy. Let's crack it. Till then,